کہ میری جیسے ساس میرے ساتھ تھی اور جب ان کا میرے سسر میرے ساتھ تھے، جب ان کا ایسا وقت تھا کہ وہ وضو نہیں کر پاتے تھے، یا پھر کبھی ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ پانی کے ساتھ ان کا ایون وہ لیٹے ہوئے وضو کرانا بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ پانی بخار کی حالت تھی، بیماری کی ایسی حالت تھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کو، الحمدللہ مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن میں صرف اس لیے دہرا رہی ہوں کہ میرے جیسے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایگزیکٹلی اس زمانے میں نہیں پتا تھا، جب میں شعوری طور پہ قرآن کو نہیں سمجھ پائی تھی اور میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، تو ہم بزرگ جو ہے نا ہمارے گھر میں، آپ کیا کریں، ایک پیالہ لے لیں جس کو اوپر ڈھکنا ہوتا ہے، کوئی بھی لے لے، اس میں آپ مٹی لے کے، تھوڑی سی پاک مٹی، ڈرائی مٹی، گیلی مٹی سے نہیں تیمم ہوتا، ڈرائی مٹی لے کے آپ اس کو جو پوٹلی بناتے ہیں نا اس طرح سے رکھ کے آپ اس کو رکھ دیں، جب بھی انہوں نے وضو کرنا ہو تو اس کے اوپر وہ ہاتھ کیوں ماریں گے، اور پھر وہ اس کا تیمم کا طریقہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، تو اس طرح سے وہ تیمم کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا وضو ہو جائے گا۔ اور آخر ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اولاد کو اگر نہیں پتا ہوگا یا ہمارے ساتھ کوئی ہو اگر ان کو نہ پتا ہو کہ یہ بھی طریقہ ہے تو پھر ہم کیسے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ دل میں ایک یہ چیز رہتی ہے کہ میرا تو وضو ٹھیک نہیں ہے تو میری نماز کیسے ہوگی۔ اور کئی دفعہ جو بزرگ ہیں نا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو وضو ہی نہیں تو پھر نماز ہم نہیں پڑھتے، تو اس لیے یہ چیز بتانا ضروری تھا۔ اور حدیث جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گی کہ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پاک مٹی سے نماز فجر کے لیے تیمم کیا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مٹی پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر ایک بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ پھر ایک بار انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنی ہتھیلیوں پہ پورے ہاتھ کے کندھوں تک اور بغلوں تک مسح کیا۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا نا کہ بغلوں اور کندھوں تک، یہ کیا تھا کہ یہ صحابہ کا اپنا ایک عمل تھا، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن جو ہمیں باقی تمام احادیث سے ملتا ہے وہ کیسے کرنا ہے کہ آپ مٹی پہ یوں کر کے آپ ہاتھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یوں کر کے نا جیسے آپ جھاڑ لیتے ہیں، یا پھر ایسے کر کے آپ یوں کر کے نہیں جھاڑیں گے، ٹھیک ہے، ایسے پھونک مار کے جیسے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہم کریم لگاتے ہیں نا منہ پہ، آپ اچھے سے منہ پہ ایسے کر لیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے مٹی پہ ہاتھ ماریں گے اور پھر آپ یوں کریں گے، یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کرتے ہیں، تو پھر آپ یوں کر کے آپ پورا کونی تک، اپنا کونی تک لے کے آئیں گے، اور پھر واپس آپ یوں لائیں گے، اور پھر آپ یوں اور دوسرے ہاتھ سے لے کے جائیں گے اور پھر یوں لائیں گے، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ کا غسل واجب ہے تو پھر غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ دونوں طرح سے آپ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے اور یہ ہو جائے گا، لیکن گیلی مٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک اور میں چیز کہنا چاہتی ہوں کہ مٹی کے بارے میں بھی لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا، تو مٹی کون سی ہے کہ کہتے ہیں کہ جن سے جو زمین سے پیدا ہو، آگ میں نہ گلے اور نہ وہ راکھ بنے، اس کے ساتھ وضو، اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اسی طرح سے ہر دفعہ جو ایک حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی لے آئے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم کریں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ دیکھیے لاسٹ ٹائم سے ہم لوگ بار بار ایک بات پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورۃ مائدہ جو ہے وہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے، یہ لاسٹ سورت تھی، اس کے تمام احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اتنی دفعہ جو لفظ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہاں پہ نیچے اپنا نام لکھ لیا کیجیے، تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں گے، قرآن کھولیں گے، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مجھے کوئی حکم دے رہے ہیں۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حکم آگے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، بالکل کیونکہ اب سورت 20 آیات رہ گئی ہیں، یہ سورت ختم ہونے والی ہے، ہم آج تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ ایکسپلین کیا، لیکن بعض دفعہ بہت سے نئے اسٹوڈنٹ بھی ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اس لیے تھوڑا سا دوبارہ سے ایکسپلین کرتی ہوں، اور آج تھوڑا سا ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی خوشخبریاں دی ہیں نا وہ یا ایھا الذین آمنو والوں کو دی ہیں،
तो क्या हम ईमान वाले हैं? ये क्या खुशखबरियां मेरे लिए हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान पाक में कहा कि अभी तो तुम इस्लाम लाए हो, अभी तो तुम ईमान लाए ही नहीं हो। तो फिर दिल में आता है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड ईमान? कि अगर अब देखें, अब थोड़ा सा हम मैं अपने आप को देखती हूँ, आप अपने आप को देखें कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि अभी तो तुम जुबान से अपने मुंह से कह रहे हो ना इस्लाम लाए हो, अभी दिल में नहीं उतरा, तो फिर दिल में उतरने का क्या मतलब है? कि दिल में इस्लाम के उतरने का मतलब है कि जब भी हम देखें आयत पढ़ते हैं ना कुरान में कि आमनू, और उसके साथ दूसरा क्या आता है, व आमिलु स्वालिहात, और वो फिर नेक अमल करते हैं। ईमान लाके कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके बाद सो नहीं जाना कि ठीक है मैं तो मुसलमान हूं, मैं जो भी करूं ठीक है, ये मतलब नहीं है। ईमान लाने के बाद, जो इस्लाम लाने के बाद जो ईमान है ना, वो दिल की हालत है। और दिल की हालत क्या है? ईमान इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ यकीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बिन देखे यकीन करना, गायब पर ईमान लाना, मनोन ईमान लाना, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इस लेवल का यकीन होगा ना, फिर हमें हर चीज आसान लगेगी। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पे जितने अहकामात है ना, उन पे अमल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन उस लेवल का हो जाएगा कि क़यामत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, कब्र का अजाब है या कब्र की खुशखबरियां भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत के वादे किए हैं वो भी हैं, दोज़ख के वादे किए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो तुम ऐसे करोगे होगा तो वो भी है। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहदहु ला शरीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम अंबिया जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, ये किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। हमारी जिंदगी, हम सोचते हैं कि हम बड़े आजाद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात के अंदर बांधी हुई है। हम नेकी भी जो करते हैं, हम अपनी मर्जी की नेकी नहीं कर सकते, हम वो नेकी करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई थी। और वो कैसे बताई थी? देखें इस्लाम जो है ना, आप ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान नाजिल कर दिया। कुरान नाजिल किस पे किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और वो एक मौलम की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने सहाबा की तरबियत की थी, उनको बताया था अपनी जिंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहते हैं ना कि वो एक चलता फिरता कुरान थे, उन्होंने अमल करके बताया कि इस कुरान पे अमल करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन से मुकामात तुम्हें अता करेंगे। तो वो जो एक सांचा था ना, जैसे अगर आप देखिए आप कुकी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप केक बेक करते हैं, तो उसको आप जिस सांचे में डालते हैं, दैट सांचा इज एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना के दे दिया था मुसलमानों को। अब उसके अंदर आप जब भी कोई चीज डालते हैं, डो डालते हैं, जिससे वो कुकी बनती है, केक बनता है, तो वो उसी शक्ल में ही बनता है, उसी के अंदर रहता है, उसे बाहर नहीं निकलता, राइट। तो हमारे पास सांचा दे दिया गया है, हमारे हदूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिए हैं। तो जो कोई अमल करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक, वो ही कामयाब होगा। अब देखिए ईमान जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो ईमान जो दिल की हालत है, वो जो हम कहते हैं ना, आपने अक्सर ये सेंटेंस सुना होगा कि मैं पता है मुझे, मैं क्या करूं, दिस मामला इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और देखने में कई दफा हमें लगता है कि या रब्बुल आलमीन ये कैसे मुसलमान है, कि मुसलमान ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप उनको कोई नसीहत करो तो वो फौरन कह देंगे कि दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दिल का मामला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमान जो है ऑफ कोर्स अल्लाह का मामला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के राज जानता है, लेकिन उसको गलत तरह से बयान किया जाता है। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ईमान दिल की हालत है, दिल की हालत यकीन की इंतहा है, ठीक है, वो आपको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। अब जब बीज बोया जाता है ना दिल में ईमान का, तो अब अगर उसको छोड़ देंगे तो जो आप सोचें कि आपने बीज बोया है, अगर वो निकले ही ना, उसको अंदर से कीड़े खा जाए, उसको वो फले फूले ही ना, वो क्या बीज होगा? आपको भी तकलीफ होगी जिसने बीज बोया, और उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर बोने का फायदा कब होगा और क्यों बोया होगा? जब वो छोटी सी कोंपल निकलती है ना, उस वक्त एक किसान से उसका हाल पूछे, या वो लोग जिनको गार्डनिंग का शौक है। अब देखें कि जब वो छोटा सा बीज फूटता है, वो कितनी खुशी होती है। यही एग्जैक्टली आप देखें कि वो बड़ा होता और वो आसानी से नहीं बड़ा होता, उसको बचाना पड़ता है,
उसको सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं। आप कभी किसान की जिंदगी का हाल देखें कि वो किस तरह से हिफाजत करता है अपने पौधों की, किस तरह से उसको गर्मी सर्दी से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा, दूसरी जगह से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उसकी खेत ना तबाह कर दे, टिड्डियां आपने देखा ना वो आती हैं कि ये हो गया तो फसलें खा गई, किस तरह से वो अपनी जान लगा के बचाता है ना जैसा फसल को। इसी तरह से ईमान को बचाना होगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुफलिहून का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फलाह पाने वाले, वो फलाह वाले जो थे ना, वो एक्चुअली उसका रूट वर्ड देखो, वो किसान ही है कि जो इतनी मेहनत से अपनी फसल को बड़ा करता है ना, वो ही फलाह फिर पाएगा। तो हम जब ईमान लाते हैं, हमारे दिल में ईमान आता है ना, तो फिर हमारे जवारे पे नजर आना चाहिए। देख के कोई ये कह दे कि ये अल्लाह वाला बंदा है, ये बड़ा मुकाम होता है। आपको ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो देखिए, जो पाकिस्तान में है, मैं आई अंडरस्टैंड, वहां पे तो सारे मुसलमान हैं। जैसे हम अमेरिका में हैं, तो अगर हम बाहर जाएं तो किसी को पता ही ना चले कि ये मुसलमान है, ना हमारी बात करने से। देखिए, सबसे बड़ी बात लेन देन मामला, इंसान देखो, वैसे आप अच्छे हो, मैं भी अच्छी, इसमें अच्छा है क्या है? आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा, आपने मेरी तारीफ की, मैंने भी आपकी तारीफ की, सेम चीज आप अपने अराउंड अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से ले। प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां पे कोई अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छे हैं, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, आपने माफ कर दिया, ये अच्छाई है। आप कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी हूं, मेरे तो दोस्तों को पूछ लो कि मैं बड़ी अच्छी हूं, दोस्तों ने आपको क्या कहना है, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, तो वो सब बिग डील। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं ना कि नेकी कर, और करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जो इतना बड़ा अजर देते हैं, वो वही है कि आमिलुस सालिहात है, कि जब इंसान नेकियों का काम करता है, भागता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की काम करने के लिए, और वो नेकियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं, वो नेकियां हैं। अब उसमें अगर आप अपनी मर्जी से करना शुरू हो जाएं, अब आएगी, आज आयत आएगी, मैं इसीलिए शुरू में भी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों को कहो कि अगर उनको कहते हो ना कि आओ उस रास्ते पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो क्या कहते हैं कि नहीं, हमें सब पता है, हमारे माँ बाप ने जो हमें बताया, हमारे बाप दादा ने जो बताया, हमारे लिए वही रास्ता ठीक है। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? इंशाल्लाह जहां पे ये आएगी मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, ईमान वालों, पूरे कुरान में जितनी खुशखबरियां हैं ना, वो ईमान वालों के लिए हैं। तो हमें ईमान वाला बनना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं ये नहीं कहा ए लोगो जो इस्लाम लाए हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ए लोगो जो ईमान लाए हो, और आमनु व आमिलुस सालिहात कहते हैं। तो इसलिए हमें गौर करना है कि हम सिर्फ इसलिए देखिए बहस करने लगो तो हम सारा दिन लगा देंगे। अगर किसी आप यू विल बी अमेज्ड समटाइम, आप ऐसे लोग आपके साथ बहस कर रहे होंगे किसी एक बात के बारे में, जो दीन के बारे में स्पेशली, कि जिनका जाहिर जो है ना आपको लगेगा कि ये तो प्रैक्टिसिंग है ही नहीं बंदा, और फिर भी ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा शायद आप झूठ बोल रहे हैं, वही सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका इल्म बड़ा है, उनकी बात करने का तरीका इतना, इल्म कौन सा दुनियावी इल्म तो डेफिनेटली है ज्यादा। और फिर वो सर के ऊपर आ जाता है ना कि मुझे पता है, मुझे ही बता रही है, मैं जरा इसको बताती हूँ कि मुझे उससे ज्यादा पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ईमान वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, ताकि हम वो अमल करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। आमीन सुमा आमीन। अब एक आयत नंबर 101 सूरत अल माइदा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए वही पुकार आ गई ना जो मैं आपसे बात कर रही थी, ला तसलू। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब एक और अदब सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो नाफरमान है और जो फरमाबरदार है वो बराबर नहीं हो सकते। और अगर इवन तो तुम्हें माल की कसरत तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है वो तो इतने अमीर लोग हैं, तुम्हें उनकी पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, तुम्हें उनकी इज्जतें करना अच्छी लगती हैं, तुम्हें उनके अराउंड रहना अच्छा लगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये कुछ नहीं फायदा देगी। हाँ, अगर उसने नेकी के साथ, उसने हलाल माल है उसके साथ, और बहुत माल है, माल की कसरत है, उसकी बात नहीं है यहाँ पे, माल उसकी बात हो रही है जो गलत तरीके से, और गलत तरीके से कैसे? रिश्वत से कमाया हुआ है, किसी का हक मार के कमा लिया, किसी विरासत में किसी का हिस्सा लेके कमा लिया। ये मैं अक्सर बात करती हूँ क्योंकि ये हमारे घरों में देखिए, ये हर एक के घर में ये बात आती है, विरासत का तो मामला आना ही आना होता है ना, तो उसमें कितनी कितनी बेईमानियां हो जाती हैं।
उस वक्त वो माल जो कमाया जाता है किसी भी लेवल पे आप देख ले, झूठ बोल के, किसी को बेवकूफ बना के, किसी की खुशामद करके, कोई तरह का माल कमाया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें अगर माल की कसरत अच्छी भी लगे और वो माल भी खबीस माल होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन बता देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं डरो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ए अक्लमंदो या उलिल अलबाब, या अक्लमंद बनते हैं ना कि मैं मजा चखाती हूँ उसको, मुझे पता है कि ये बात कैसे करनी है। और जब कोई हमारे सामने ऐसा बात आ जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए कहते हैं ए अक्लमंदो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तसलू, ना सवाल करो, अन अशिया, इन चीजों के बारे में, इन अगर तुबदलकुम, अगर जाहिर कर दी जाए तुम पर, तो सुकुम, तो तुम्हें बुरी लगे। अब देखिए, गौर कीजिए इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे सवाल करने से मना कर रहे हैं कि जिनकी हकीकत इंसान पे वाज़ेह हो जाए तो वो उसको अच्छी ना लगे। अब इसके बारे में नबी, इसकी शान नुज़ूल में पहले आपको बता देती हूँ ताकि आप इस आया को उस तरह से अच्छे से समझ जाएंगे कि हजरत अनस बयान करते हैं, ये इमाम बुखारी अपनी किताब में लेके आए। इमाम बुखारी जो है वो 256 हिजरी में उनकी वफात हुई थी। हजरत अनस बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया कि उससे पहले वैसा खुतबा उन्होंने कभी नहीं दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उस दिन गुस्से में थे, और जब उन्होंने मेंबर पे आए, क्यों गुस्से में थे, क्योंकि या इस आया की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि वजह क्या थी कि लोग जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल किया करते थे जो ठीक नहीं थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक भी नहीं थे। और नबी से आके क्या पूछते थे, अब सवालों पे गौर कीजिएगा, वो तो जाहिल थे ना, बद्दू थे और मुनाफिक भी थे उसमें। मुसलमान जो सहाबा थे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सवाल कौन करते थे, जो बद्दू आते थे। क्योंकि देखिए ये आया का नाजिल हुई थी, मदीना में नाजिल हुई थी, और मदीना में ये था कि जो हिजरत करके आए थे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो कुछ लोग वहां पे मुसलमान हो रहे थे। अब लेकिन वक्त के साथ साथ नए नए मुसलमान भी होते थे, लेकिन क्योंकि वो मुशरिक फैमिली से आए हुए थे, उनके फर्क तरह के उनके रस्म रिवाज थे, तो अभी तक उनकी वो चीजें उनके अंदर थी। ये उस जमाने की बात मैं आपको बता रही हूँ। आज अब देखिए, हम तो नस्लों से अब मुसलमान है ना, तो ये सवाल वो क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अपनी जैसे ऊंटनी लेके आते थे। अब वो अगर प्रेग्नेंट होती थी तो पूछते थे कि इसका लड़का पैदा होगा कि लड़की, नर होगा कि मादा होगा। आज आप देखिए कि आपने सुना होगा ना इस बारे में, जरा हाथ देख के बाजी जरा बताना कि मेरा बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या करते थे कि अगर उनकी कभी कोई ऊंटनी गुम हो जाती थी या ऊंट गुम हो जाता था तो आके पूछते थे कि आप तो नबी हैं, आप जरा हमें बताइए कि मेरी ऊंटनी कहाँ पे है, वो गुम हो गई है। आज हम नहीं पूछते, जब चीजें गुम हो जाती हैं तो जाके पूछते हैं कि जरा बताना मेरी फलां चीज गुम हो गई, वो किधर है। देखिए वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि शिर्क हर जमाने में अपनी शक्ल बदल लेता है लेकिन रहता है लोगों के अंदर, जिनके अंदर है। मोमिन तो अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कामयाब लोग हैं। उस जमाने में लोग बुतों का शिर्क करते थे। देखिए अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते थे। और मैंने कितनी दफा आपको ये बताया कि वो खाना काबा का तवाफ भी करते थे, वो खाना काबा के मतवल्ली भी थे। लेकिन उन्होंने जो बुत रख दिए थे खाना काबा में, वो क्यों रखे थे? क्योंकि वसीला बनाते थे कि ये जो बुत है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारे बारे में दुआ कर, हम जो इनसे मांगते हैं ना वो अल्लाह को कहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ सुन लेंगे। आज हम क्या करते हैं, आज हम कैसी कैसी चीजें कर रहे होते हैं। इसलिए मैं बहुत चीजों में नाम नहीं लेती हूँ ताकि आप खुद ही सोच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अपने आप को खुद ही से करेक्ट करें, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में कुरान खुल गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पे कहा कि वो आके जब ऐसे सवालात किया करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया। एक दिन मेंबर पे आए, तशरीफ लाए और आके कहा कि आज जिसने जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और सहाबा कहते हैं कि हजरत अनस कहते हैं कि मैंने इधर उधर देखा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नागवारी का हिसाब पता चल रहा था। ये सहाबा उनके वर्ड थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उन चीजों को जान लो जिनके बारे में मैं जानता हूं तो तुम कम हंसो और तुम ज्यादा रो।
आपको याद है हमने वो हदीस भी पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि कब्र के बारे में कि वहां पे सवालात और जवाब जो होते हैं उसके बारे में और सारा जो उसमें पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, और हम ये देखें कि हमारे घर के मर्द और जो भी बच्चे हैं उनको जुम्मे के वक्त में कोशिश करके, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोग जाते हैं लेकिन जिनके घरों में नहीं जाते उनको बताएं ये बात कि अगर 3 जुम्मे इंसान जानबूझ के छोड़ दे तो वो मुसलमान से निकल जाता है। अल्लाह अकबर। ये मैंने अब एक छोटी सी वीडियो भी बना के पोस्ट की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये बातों को समझ सकें। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब मुझे और आपको एक पैगाम दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उदउ इला सबीली रब्बिक, ए लोगो दावत दो, पुकारो और शुरू करो इला सबीली, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देने की तरफ लोगों को बुलाओ, और इला सबीली रब्बिक का अपने रब की रास्ते की तरफ कैसे हमने बयान करना है। अब देखिए यूजुअली लोगों को क्या होता है कि अच्छा अभी तो मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया, मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं थोड़ी भी बता सकती हूँ। अच्छा जब मैं पूरा पढ़ लूंगी ना एक दफा कुरान फिर मैं बताना शुरू करूंगी। अल्लाह सुब्हानहू, आप सिर्फ एक बात सोचिए कि सहाबा इकराम क्या इंतजार करते थे कि पूरा कुरान नाजिल हो जाएगा या पूरी सूरत अल बकरा खत्म होगी फिर कहूंगा। इधर वो शहादा लेते थे, उधर वो दावा का काम शुरू कर देते थे, वो अल्लाह का पैगाम देना शुरू कर देते थे लोगों को। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग अभी अपने लोग मुसलमानों को ही पैगाम देते जा रहे हैं, बाहर पैगाम तो अभी बड़ी दूर की बात है, अभी तो इधर ही पैगाम बस कंप्लीट नहीं हो रहा हम लोगों का। सहाबा क्या करते थे, जैसे उन्होंने कलमा पढ़ा उसी तरह से उसी वक्त जाके वो अपने कबीले में जाते थे, तो वापस जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक उनको वो बताते थे कि इस्लाम क्या है, और लोग इसी तरह से इस्लाम के अंदर आते थे। लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा और वो सारे आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे देखिए कि ये बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो चीज अल्लाह ने नहीं बताई ना उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, इसलिए उनके बारे में ना पूछो, कुरेदो ना, क्योंकि कुरेदोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। इसी तरह से जैसे कब्र का टाइम है तो कब्र के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर क्लियर नहीं बताया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही थी कि अगर पता चले तो मुर्दे दफनाना बंद कर दो, तो तुम्हें तकलीफ होगी। जिन चीजों के बारे में नहीं पता और बस समेना व अताना करने वाले बन जाओ, आमीन सुमानी। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 103 में कहते हैं कि मा जअल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा। अब यहाँ पे ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं कि आपके पास कितना टाइम है। वाओ, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके जी, अब यहाँ पे इस आयत में मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सकेगा मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अब पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो हज के लिए जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो हदी का जानवर है और जिसके गले में पटा होता है, जो निशानी ये होती है कि अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, वो हुर्मत वाले जानवर है, उनको तुम तंग नहीं करोगे और उनको तुम रास्ते में लूटोगे नहीं, या इस तरह से नहीं करोगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो अल्लाह ने बनाए ना उनको हुर्मत वाला, कि मा जअल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा, वला साइबातिन, और ना कोई साइबा, वला वसीलतिन, और ना कोई वसीला, वला हामिन, और ना कोई हाम बनाया, वलाकिन अल्लज़ीना कफरू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यफ्तरूना, झूठ बोलते हैं, घड़ लेते हैं, अलल्लाहि कज़िब, अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, व अक्सरुहुम ला याक़िलून, और अक्सर लोग तो अक्ल ही नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे जो देखिए ये जो 4 चीजों के नाम आए थे ना, ये उनके ऊंट, बहीरा एक ऐसे ऊंट को कहते थे कि जो जिसने 5 बच्चे जने होते थे। और बेसिकली मैं आपको इनकी डिटेल तो थोड़ी सी बता देती हूँ। मकसद ये था कि ये इन्होंने अपने जो जानवर अल्लाह की राह में खास किए हुए थे वो अपने बुतों के नाम पे उनको छोड़ देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये गलत करते हैं, और इस आयत पे इतने बड़े सबक हमें मिलते हैं कि आज रहते हुए हम किन तरह के शिर्क में मुब्तला हैं। तो अब देखिए कि बहीरा उस ऊंट को कहते थे जिसने 5 बच्चे जने, आखिरी 4 उसकी बेटियां फॉर एग्जाम्पल फीमेल थी और आखिर में उसका मेल पैदा होता था। तो वो जब 4 बेटियां, क्योंकि जानवरों में बेटियां पैदा करने वालों की बड़ी इज्जत होती है, जैसे इंसानों में बेटों वालों की होती है ना, इसी तरह से जानवरों में बेटियों वाले की होती है। तो 4 बेटियां जब उसने पैदा कर ली, 5वां जब लड़का हुआ तो उनको वो छोड़ देते थे बुतों के लिए कि इसको अब ना कोई ज़बह कर सकता है, ना इसको कोई वो जहां से मर्जी चरते थे, उनको आजाद छोड़ दिया जाता था।
تو اب جیسے میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ جیسے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی نا، 4 بیٹیاں پیدا کر لیتے، تو بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بہو کے 4 بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باجی بہیرہ بن جاتی ہیں نا، تو پھر خاندان والے بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ جی اس کے ماشاءاللہ، اور خود سے بھی ہوتا ہے کہ 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تو بلا صاحبہ تھے، وہ صاحبہ اس کو کہتے تھے کہ جیسے اگر وہ سفر میں جاتے تھے، کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ اپنے لیے جو بھی اونٹنی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ یہ جو میری اونٹنی ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں چھوڑ دوں گا، اگر مجھے بتوں کے نام پہ چھوڑ دوں گا اگر مجھے صحت مل جاتی تھی. تو جیسے وہ صحت یاب ہوتے تھے تو وہ اپنی اونٹنی کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ولا وسیلہ تھے، اور وسیلہ ایسی بکری کو کہتے تھے جس کے اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا، نر پیدا ہوتا تھا تو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر جو پیدا ہوتی تھی لڑکی پیدا ہوتی تھی، مادہ پیدا ہوتی تھی، تو اس کو وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے. لیکن جب وہ اکٹھے پیدا ہوتے تھے لڑکا لڑکی تو پھر وہ اس بکری کو اس کے ساتھ لڑکے کے ساتھ ہی بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. تو وسیلہ مینس ملانا کہتے تھے، تو ان کے لیے خاص کر دیتے تھے. تو ولا حام ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے 10 بیٹیاں جنی ہوتی تھی، 10 دفعہ پریگننٹ ہوتی تھی اونٹنی، تو وہ 10 بیٹیاں پیدا کرتی تھی، تو اس کا تو بڑا 10 بیٹوں والوں کا مقام بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ چلو جی تمہاری بھی چھٹی ہوگی، تم نے تو اتنا بڑا کام کر لیا. تو دیکھیے یہ چیز جانوروں میں بھی ہے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز کس کی بتائی تھی؟ دیکھیے یہ جہالت کے زمانے کی بات ہے. آج ہم کوئی کیا کرتے ہیں، ہماری سوچیں کہاں پہ ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. مینس اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ جانور چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ، اور پھر ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، وہ آزاد پھرتے رہتے تھے. آج اب یہاں پہ دیکھیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. آف کورس میں جلدی سے بات کو ریپ اپ کرتی ہوں کہ شاہ دولت شاہ کا چوہے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. آپ ذرا گوگل آج کیجئے گا، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. میں نے خود اپنی آنکھ سے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. دیکھیے آج بھی جہالت کی انتہا ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوگا اس کو وہ ادھر چھوڑ کے آتے ہیں، اس مزار پہ چھوڑتے ہیں. اور اس مزار پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر نا وہ کیپ ایسی بنا دیتے ہیں جو لوہے کی یا اس طرح کی کیپ ہوتی ہے، جس سے ان کے سر تنکونے سے جیسے بن جاتے ہیں چھوٹے، اور کیونکہ دماغ ان کے چھوٹے رہ جاتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے، پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں. اب دیکھیے گجرات میں ہے یہ مزار، اب پاکستان میں ہے. ایک سے ایک بڑا عالم ہمارے پاکستان میں ہے، حکومت ہے وہاں پہ، سارا کچھ ہے، کوئی ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا. ہم کس طرح کی دنیا میں ہیں؟ ہم کیونکہ ہم ڈرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو یہ نہ ہو کہ یہ کوئی سچی بات ہو، اس مزار میں واقعی کوئی ایسی چیز ہو کہ ان بزرگ کی کہ بدوائی نہ ہمیں لگ جائے تو کہیں ہمارے اوپر وبال نہ آ جائے. نہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے. ہم ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کے بارے میں کوئی کہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ دین کے نام لے کے ہی ہمیں خراب کیا جاتا ہے. اسی کے نام لے کے ہم سے ایسی بدعات کرائی جاتی ہیں، ہم لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. کنڈے میں یہ نہیں، ابھی میں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کر رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ کرتی ہوں، لیکن آگے انشاءاللہ وہ آیت بھی آئے گی کہ ہم پوچھے نا اگر کہ یہ دیکھو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ تم دین کا حصہ کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں، میرے تو امی کرتی تھی ایسے کیسے؟ نہیں ایسے نہیں. آج بھی دیکھیں ایسے ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی پھر ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں نے آج جو پڑھ کے سنائی تھی کہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گی کہ ظالم جو ہے اس کا اگر ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا. ہم ڈرتے ہیں. مجھے کیا، میرا گھر تو ٹھیک ہے نا، اگر باہر ایسے ہو رہا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ میں اس ٹاپک کو ختم کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت ہو گیا ہے. میں نے پہلے آپ سے 2 منٹ زیادہ لے لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھ عطا کرے، اور جہاں پہ ایسی چیز کوئی ہو رہی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ آواز اٹھا دے اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں. جیسے دیکھیں ایک کو بات کرتے ہیں نا وہ دوسرے کو بتاتا ہے. میں اکثر جب ہم فیس بک میں تھی، آج پہلی دفعہ یوٹیوب میں لائیو ہوں،
تو فیس بک میں جب میں بند کرتی ہوں تو اس میں آلموسٹ 15,000 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کو. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ 15,000 اگلے 15 کو بتائیں، اور 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ 50,000 سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اگر اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے، اپنی بات شیئر کرتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی طرح سے ایک دن اسلام اپنا اسی مقام پہ آ جائے گا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرض دے کے گئے تھے. یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم نے اسلام کو آگے پہنچانا ہے. ہم نے دوسروں کو کیا پہنچانا، ابھی تک تو ہم اپنے گھروں میں نہیں پہنچا سکتے.